Uh, Thank you, sir. I am Devendra Kumar from Well Services section. I welcome all the my seniors, respected seniors and colleagues to this lunch hour talk on the safe use of electrical appliances at the workover rigs. Uh, I thank you all participants for giving valuable time to listen this talk, lunch hour talk. Thank you very much. Let me start now. सर, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर मैं ये टॉक कर रहा हूँ। ये तो लेट मी स्टार्ट नाउ। हम पहले करेंगे नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। Protective devices are necessary to protect electrical appliances or equipment against short circuit, abnormal variation in the supply voltage, overloading of equipment, to protect operator against accidental contact with the faulty equipment or electrical line failing, which the operator may get severe shock. अगर किसी बंदे को अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें होगा तो it will get person will get the shock. तो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है जो हम वर्क ओवर रिग पे यूज करते हैं। आप फ्यूज वायर यूज करते हैं, एमसीबी यूज करते हैं, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी मोल्डेड सर्किट ब्रेकर्स, ईएलसीबी यूज करते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, एंड और हम मोस्ट एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इज अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग ऑफ एवरी इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट अवर equipment and our operators user of electrical. So this is most important. Now I will start with fuse. Fuse generally means a fuse wire which is placed in the fuse holder. It is a safety device which protects electrical and electronic circuit against overload, short circuit and earth fault. The fuse link or fuse wire is made of low resistivity material and low melting point. Fuse wire or fuse of proper rating needs to be replaced when blown. ये क्या था, पहले हम यूज करते हैं, पहले फ्यूज वायर यूज करते थे, तो जैसे अभी कोई करंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो इट विल टेक मोर करंट, तो जब ज्यादा करंट होगा लिमिट से ज्यादा तो इट विल गेट फ्यूज, तो आपका सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा, आप मतलब फिर उसको सप्लाई नहीं मिलेगा और आपका अप्लायंस बंद हो जाएगा। दूसरा हम यूज करते हैं एमसीबी। आजकल हम एमसीबी ज्यादा यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसमें क्या एडवांटेज उसका यह है कि हमको वहां पे अगर फ्यूज अगर ब्लो हो जाता है तो हमको रिप्लेस करना पड़ता है फ्यूज, बट इन दिस केस वी नीड नॉट टू रिप्लेस अगेन एंड अगेन। ठीक है, फ्यूज इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, दैट इज आई एम डिस्कसिंग अबाउट एमसीबी। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस which works on magnetothermic release principle. जैसे कोई मतलब अगर एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगा किसी बॉडी में मेटल में से थर्मिक, तो इट विल गेट बैंड, मतलब बैंड हो जाएगा, तो आपको सर्किट को उसको वो कर देगा, ब्रेक कर देगा। इट इज कनेक्टेड इन द फेज बिटवीन द सप्लाई एंड लोड। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ 6 एम्पियर टू 40 एम्पियर तक की एमसीबी बनती है। We can see it on the meter board of each and every house. हमारे घरों में भी ये लगे हुए थे, एमसीबी लगे हुए होते हैं हमारे घरों में, क्योंकि पहले फ्यूज वायर यूज करते थे, सप्लाई लेते थे, फ्यूज वायर यूज करते थे, फिर आपका मीटर लगाते थे। अभी क्या मीटर भी स्मार्ट मीटर आ गए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स आ गए हैं, और आपका जो घरों में अभी एमसीबी लगा यूज करते हैं हम इन एवरी हाउस। ठीक है, when the current drawn by the load exceeds the rated value, it acts and trips the circuit, thus protecting the apparatus and operator and appliances. ठीक है सर, नेक्स्ट अभी now we will discuss the advantage of MCB over this fuse wire. तो they act as a open, they act and open the circuit in less than 5 milliseconds. मतलब जो जैसे अगर करंट ओवर होगा उससे, तो it will get tripped. Automatic switch off under overload and short circuit condition. No fuse to replace or rewire. It needs to no repair. इसका कोई रिपेयरिंग की जरूरत नहीं होती है। Supply is restored after resetting it. उसको आप ऑफ करके फिर ऑन करेंगे
तो it will get on. When the overflow of current takes place through MCB miniature circuit breaker, the bimetallic strip gets heated and it deflects by bending. The deflection of the bimetallic strip releases a latch. एक latch होता है, उसके अंदर mechanism है, तो it will get release the latch and the latch causes the MCB turn off by stopping the flow of current in the circuit. Next हम MCCB भी यूज करते हैं, मोल्डेड सर्किट ब्रेकर. तो दिस इज मेन सर्किट ब्रेकर यूज्ड एट वर्क ओवर रिग. 200 एम्पियर 100 एम्पियर्स का जो हमारा जनरेटर्स वगैरह में और मेन जो पैनल बोर्ड में हम यूज करते हैं, ये आपका MCCB यूज करते हैं. NGR, ELR, सेंस फॉल्ट एंड ट्रिप्स, MCCB. बेसिक प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन थ्रू बायोमेटेलिक. इसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्शन सिस्टम रहता है? ओवरलोड प्रोटेक्शन थ्रू बायोमेटेलिक स्ट्रिप, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अदर प्रोटेक्शन थ्रू शंट ट्रिप रिलीज. इसके अंदर एक एडवांटेज है कि शंट ट्रिप रिलीज होता है इसके अंदर, तो इसलिए हम ये यूज करते हैं. ज्यादा रेटिंग की हमको करंट जहाँ पे यूज करना होता है, ज्यादा लोड होता है, वहां पे हम MCCB यूज करते हैं. So we will discuss about MCCB. MCCB is an automatic electrical device used to protect the electrical equipment from overload, short circuit, instantaneous overload, overcurrent, earth fault. Earth fault भी होगा तो it will get tripped. It is an advanced version of MCB. We can say it is an advanced version of MCB. Miniature circuit breaker का advanced version है, जिसमें कि एडेड एंड शंट कॉइल होती है और MCB में शंट कॉइल नहीं होती है. ठीक है. इट इज अवेलेबल फ्रॉम 32 एम्पियर्स टू 1600 एम्पियर्स. वो हाई रेटिंग के लिए भी ये यूज करते हैं. विद इन द वोल्टेज रेंज ऑफ 230 वोल्ट से लेके 1.1 किलो वोल्ट 1100 वोल्ट तक के आते हैं ये. MCCB प्रोवाइड्स एन इंस्टेंटेनियस रेस्पॉन्स टू ए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर होता है. जैसे ही उसको सप्लाई मिलता है तो मैग्नेटिक वो होता है, उसको ट्रिप कर देता है. कॉइल को सप्लाई मिलेगा तो इट विल गेट ट्रिप्ड. और नॉर्मल जब रोगा, अगर कोई फॉल्ट नहीं होगा तो उसको सप्लाई नहीं मिलेगा. जैसे ही फॉल्ट होगा तो NC कॉन्टैक्ट के थ्रू उसको सप्लाई मिल जाएगा शंट कॉइल को, तो इट विल गेट ट्रिप द MCB. The MCB contains a solenoid coil which generates a small electromagnetic field when current passes through the MCB and MCCB. ठीक है. MCCB. अभी हम जो ELCB, आजकल जो ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करते हैं. अभी घरों में यूज करते हैं ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर. इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस विद हाई अर्थ इंपीडेंस टू प्रिवेंट शॉक. शॉक से बचाने के लिए हम इसको यूज करते हैं. So it detects small stray voltages on the metal enclosure of electrical equipments and interrupts the circuit if the dangerous voltage is detected. जो मेटल से जहाँ पे फिट किया होता है, अगर उसमें भी अगर थोड़ा भी वोल्टेज अर्थ लीकेज होगा, कोई वायर अगर फेज वायर इफ इट टचेस द अर्थ तो इट विल गेट ट्रिप्ड. अर्थ लीकेज रिले हमारा जो रिग के ऊपर है, ELR हम लगाते हैं, अर्थ लीकेज रिले लगाते हैं. तो आई विल डिस्कस अबाउट अर्थ लीकेज करंट. तो अर्थ लीकेज करंट कैन एग्जिस्ट थ्रू एन इंसुलेशन फॉल्ट. केबल का इंसुलेशन फॉल्ट हो जाएगा और इक्विपमेंट का में फॉल्ट होगा कहीं, तो अर्थ लीकेज विल अकर. और इट कैन अकर अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस आल्सो in electronic equipments which use capacitors for filtering purpose in power supplies. जो कैपेसिटर्स हम यूज करते हैं तो उसमें भी अगर लीकेज वगैरह होगा तो इट विल गेट कॉज लीकेज. इसकी वजह से लीकेज हो सकता है कैपेसिटर्स वगैरह में. जब पावर वो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हम कैपेसिटर्स वगैरह भी यूज करते हैं. और आपका फिल्टर सर्किट्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर सर्किट्स होते हैं, उसमें कैपेसिटर्स भी यूज करते हैं, इंडक्टर्स भी यूज करते हैं. तो उसमें भी अगर कोई अगर टच करता है कैपेसिटर, क्या कैपेसिटर चार्ज हो जाता है. जैसे भी सप्लाई उसको देते हैं तो इट विल गेट चार्ज विद द रेस्पेक्टिव वोल्टेज.
जो भी वोल्टेज होगी उसमें चार्ज हो जाता है। अगर हम उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, ऐसे ही छू लेंगे तो वी विल गेट शॉक। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ELCBs, लीकेज, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स। ELCB आउटडेटेड हो गया, जो मतलब एक वोल्टेज ऑपरेटेड होता था, वोल्टेज सेंस करके, और एक करंट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, लीकेज सर्किट ब्रेकर जो आजकल हम यूज करते हैं उसको RCCB भी बोलते हैं, दैट इज रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर्स। अर्थ लीकेज रिले इज ए सेंस, वी विल डिस्कस अबाउट अर्थ लीकेज रिले। अर्थ लीकेज रिले हम यूज करते हैं जैसे अगर कोई अर्थ लीकेज होगा तो अर्थ लीकेज रिले के थ्रू उसमें आपका शंट कॉइल को सप्लाई जाएगा, और जैसे ही उसको सप्लाई मिलेगा तो इट विल गेट ट्रिप्ड, MCCB को ट्रिप कर देगा। तो अर्थ लीकेज के बारे में हम यूज करते हैं रिले के बारे में। अर्थ लीकेज रिले इज ए सेंसिंग device that senses the earth leakage current and sends signal to the circuit breaker to trip the circuit or disconnect the main power supply. Earth leakage fault occurs due to improper connection. अर्थ लीकेज इम्प्रॉपर कनेक्शन से भी हो सकता है, अगर बराबर टाइट नहीं किया और जाते वक्त अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन में है तो कहीं लीकेज हो गया, वायर निकल गया, तो दैट में आल्सो कॉज अर्थ लीकेज। इंसुलेशन फेलियर भी हो सकता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ILM में ट्रांसपोर्टेशन में अगर अर्थ लीकेज हो गया तो इट विल अर्थ लीकेज में आल्सो अकर, अगर इंसुलेशन फेलियर होता है। मॉइस्चराइजेशन वगैरह हो गया, अगर जब कभी पानी वगैरह घुस जाता है तब भी अर्थ लीकेज हो सकता है ना। ह्यूमन इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, अगर हम अपना प्रोटेक्टिव ये डिवाइसेस अगर नहीं यूज करेंगे तो उसमें अर्थ लीकेज, अगर हम ऑन करेंगे उसको, अगर प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं लगाए तो human being can get electric shock. So when an earth leakage fault occurs, the earth leakage relay can sense the fault and send the signal to the circuit to trip the main power supply. Whenever there is any earth leakage current is there, so this earth leakage relay will sense the earth leakage current and it will give signal to the शंट कॉइल, सेंड द सिग्नल टू द सर्किट टू ट्रिप द पावर सप्लाई। शंट कॉइल को सप्लाई देगा तो शंट कॉइल सप्लाई देने से इट विल ट्रिप द सर्किट ब्रेकर। करंट ऑपरेटेड ELCB आर जनरली नोन एज रेजिडुअल सर्किट डिवाइसेस। दीज आर आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट अर्थ लीकेज। बोथ सर्किट कंडक्टर्स सप्लाई एंड रिटर्न आर रन थ्रू द सेंसिंग कॉइल। Any imbalance of the current means the magnetic field does not perfectly cancel. तो इसमें जो RCCB हम यूज करते हैं, ELCB और RCCB, जो भी करंट हम इनपुट करंट देते हैं, फेज से जो करंट जाता है वही उसके थ्रू न्यूट्रल के थ्रू जो सेकेंड फेज है उसके थ्रू रिटर्न आना चाहिए। अगर इन दोनों में अगर बैलेंस नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, जो इनसाइड करंट है और जो आउटसाइड करंट, रिटर्न करंट एंड इनपुट करंट, इफ अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये RCCB विल गेट ट्रिप्ड। अगर बैलेंस नहीं है, कारण क्या है बैलेंस नहीं होने का? कि कहीं लीकेज होगा तब भी बैलेंस नहीं होगा, तो कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया, ओपन हो गया, तब भी बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर द कॉजेज फॉर अनबैलेंसिंग। तो ये आपका RCCB is used in this principle. Okay. So now I am discussing about the ELR, earth leakage relay. तो earth leakage relay का क्या advantages क्या हैं और फायदे क्या हैं? तो ELR is a earth fault protection device. It actuates when there is a presence of earth fault in the system. Earth fault मतलब earth leakage हो, कोई भी फेज है आपका, जो RYB फेज में से कोई भी अगर फेज अगर ग्राउंड हो जाता है तो earth fault will occur because of imbalance in the system. Safety guard personal and electrical apparatus from earth fault. ये सेफ गार्ड करता है पर्सनल्स वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल apparatus from earth fault. earth fault वगैरह होगा तो it will get this will sense the earth leakage current and will get signal to trip the MCCB. ठीक है, तो लेवल ऑफ ELR 50 मिलीएम्पियर्स है, 100 मिलीएम्पियर्स, 250 मिलीएम्पियर्स विद टाइम सेटिंग्स हम यूज करते हैं। हमारे यहाँ ELR जो लगी हुई है
हम 50 मिली एम्पियर्स, 100 मिली एम्पियर्स, 250 मिली एम्पियर्स की टाइम सेटिंग से मिलते हैं। हम जनरली 100 मिली एम्पियर्स पे सेट करते हैं, ठीक है। लिमिटेशन, इनइफेक्टिव ऑपरेशन व्हेन अकर अर्थिंग्स आर लूज। इसका इनइफेक्टिव ऑपरेशन कब होगा? जब अर्थिंग कनेक्शन आर लूज होगा। अर्थिंग कनेक्शन लूज होगा तो इट विल नॉट वर्क, इट विल, अर्थिंग कनेक्शन लूज होगा ना तो ये काम नहीं करेगा। अगर जैसे ही अर्थिंग कनेक्शन हुआ तो इट ट्रिप हो जाएगा, मतलब जो इट विल नॉट वर्क। तो अर्थिंग कनेक्शन जो अब न्यूट्रल्स के साथ में होना चाहिए। अब ये इसका ये फंक्शन सर्किट डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ये न्यूट्रल है RYB, ये हमने सप्लाई दिया इसको, उसके बाद ये MCCB के आउटपुट आ रहे हैं, ये CBCT कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू ये जाते हैं। इसमें बैलेंसिंग दिखाता है, अगर कोई भी फेज से न्यूट्रल में जो करंट जो जा रहा है अगर बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है, या तीनों फेजेस में अगर वोल्टेज बराबर नहीं होगा तो इससे सिग्नल जाएगा, इसका आउटपुट इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे जो टर्मिनल इसमें शो कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, मेरा कर्सर जहाँ पर है वहां से ये जाएगा तो T1 T2 को इसको सप्लाई मिलेगा। ये T1 T2 टर्मिनल T1 T2 को सप्लाई मिलने के बाद ये आपका ट्रिप कर देगा इसको, सर्किट ब्रेकर को, इसको ये कॉइल को ना सप्लाई मिल जाएगा, शंट कॉइल को। ये आ जा रहा है, ये यहाँ से लेके इसको यहाँ से इसमें आया, तो इससे शंट कॉइल को सप्लाई मिलने की वजह से ये ट्रिप कर देगा इसको, सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसका टाइम सेटिंग ये और ये दे रखा है कितने एम्पियर्स का, ये पूरा मैं सर्किट दिखाया। इसमें ये A1 A2 टर्मिनल्स आर फॉर द ऑक्सिलरी पावर सप्लाई टू ऑपरेट द रिले, इट जनरली रिक्वायर्स 230 वोल्ट सप्लाई। A1 A2, ये A1 A2 ये सप्लाई है आपका, कॉइल का सप्लाई है। इसको जब कॉइल को सप्लाई मिल जाएगा तब ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, T1 T2 आर टर्मिनल्स टू कनेक्ट CBCT टू कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर फॉर एनी अदर सेंसर। जो मैं बताया था कि इसमें अगर इम्बैलेंस होगा तब इसको सप्लाई वो मिलेगा, ये सिग्नल मिलेगा। हाँ जी बोलिए। आपका स्क्रीन थोड़ा दिखा दीजिए ना, उसमें पता नहीं चल रहा है आपको, आपका स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। स्क्रीन तो आ रहा है, स्क्रीन तो आ रहा है। नहीं, आपका ही। हाँ जी, स्क्रीन तो आ रहा है ना, सब जगह आ रहा है स्क्रीन तो। हाँ स्क्रीन आ रहा है। ओके, आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है। T1 T2 टर्मिनल का CBC बैलेंस 31 32 34 आर द टर्मिनल्स फॉर कॉमन NC एंड NO रेस्पेक्टिवली। 31 32, ये 31 32, ठीक है। ये NC कॉन्टेक्ट का है, कॉमन का है, NO। जो NO कॉन्टेक्ट विल बिकम द NC कॉन्टेक्ट, और NC कॉन्टेक्ट वगैरह इसको सप्लाई मिल जाएगी शंट कॉइल को, तो ये ट्रिप कर देगा। ठीक है, ये इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। टर्मिनल 11 14 are the basically NO contact, they are used for voltage presence. Working principle of the circuit is very simple. In normal conditions, current in all phases and neutral are equal or balanced. मैं बताया था अभी, balanced, so the CBCT does not produce any current. उसमें कोई करंट नहीं आएगा जब तक कि बैलेंस रहेगा। इफ देयर इज एनी इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, बिकॉज ऑफ ओपन सर्किट और सम ग्राउंड फॉल्ट की वजह से, जैसे वो होगा तो CBCT से उसमें करंट जाएगा और आपका जो सप्लाई इसको मिलेगा, रिले को A1 A2 को सप्लाई मिलने की वजह से इसमें वो NC ये NO कॉन्टेक्ट है ना, दिस NO कॉन्टेक्ट विल बिकम NC कॉन्टेक्ट। ये कॉन्टेक्ट हो, इसको सप्लाई एक ये आ गया, एक न्यूट्रल से इसको मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा, ट्रिप कर देगा ब्रेकर को। ठीक है, दिस इज द सिंपल। ओके, हाँ अभी ये आपका जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर जो NGR की बात है, वो हमने अभी डिस्कस किया। ELR का अर्थ लीकेज रिले, ठीक है। अर्थ लीकेज रिले यूज की जाती है इन कंजक्शन विद दिस न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर के साथ में हम वो यूज करते हैं। तो अब ये न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर कॉमनली नोन एज अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रजिस्टर्स are used in AC distribution networks to limit transient over voltages that flow through the neutral point of the transformer or generator to save value during the fault event.
ठीक है, जो हमारा जो हम रजिस्टर क्यों यूज करते हैं, रजिस्टर वोल्टेज को कम करने के लिए यूज करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप उसमें होगा, तो जैसे अब जो टच वोल्टेज है, टच वोल्टेज विल बी लेस, 50 वोल्ट होना चाहिए एज पर द CEA रेगुलेशंस, तो उसमें इतना शॉक नहीं लगता है, शॉक नहीं लगेगा उसमें। NGR is constructed by inserting a resistor between the star connected neutral terminal and ground terminal. NGR grounding system provides more benefit than both ungrounded and solidly grounded systems की से beneficial है ये resistance लगाना। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, पर्पस क्या है। द मेन पर्पस ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर is this huge amount of current will damage the winding of alternator। अगर हम ग्राउंडिंग नहीं करेंगे प्रॉपरली, उसका डायरेक्ट भी ग्राउंड करेंगे तो ह्यूज अमाउंट करंट अगर फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट होगा, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट विल डैमेज द वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर। दैट इज व्हाई दे कनेक्ट द न्यूट्रल पॉइंट टू अर्थ थ्रू ए रजिस्टर व्हिच लिमिट्स द हाई करंट ड्यूरिंग फॉल्ट एंड प्रोटेक्ट द अल्टरनेटर फ्रॉम डैमेज। ये इक्विपमेंट का भी सेव करता है और आपका ह्यूमन बीइंग को भी सेव करता है, क्योंकि उससे जो टच वोल्टेज है दैट विल आल्सो रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन द रेजिस्टेंस व्हिच वी आर यूजिंग इन द neutral for grounding। ठीक है, the voltage between the neutral and earth should be less than 2 volts। the voltage is more than 2 volts, the electronic equipment starts malfunction। अगर जो ग्राउंडिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी, अगर वो न्यूट्रल और उसके बीच में जो न्यूट्रल, देखो न्यूट्रल इज ग्राउंडेड थ्रू दिस क्या बोल अर्थ रेजिस्टेंस के थ्रू होता है, और अर्थ हम एवरी इक्विपमेंट को अर्थिंग करते हैं, डबल अर्थिंग करते हैं टू सेफ। अगर एक भी अर्थिंग टूट भी जाता है तो सेकेंड अर्थिंग इज बैकअप अर्थिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ पर्सन और ऑपरेटर यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और आपका बंक हाउस वट एवर वी कैन से। प्रोटेक्शन अगेंस्ट, फायदा तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांसिएंट ओवर वोल्टेज, measure the fault current through neutral grounding transformer। main ultimate aim of NGR, अभी इसको main ultimate aim of NGR का क्या है, is to limit the fault current। NGR का neutral ground register का main purpose है to जो अर्थ वो fault current को limit करना है। it just work as a fault current regulator, you can say। the resistance always opposes the flow of electrons current upon flow of heavy fault current from the winding। the conductor may get damaged because the protection relay needs minimum time to isolate the power system। कोई भी प्रोटेक्शन हम रिले को थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है, डिले होता है थोड़ा टाइम, तो अगर हम ये अर्थ फॉल्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ये आपका न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो जो भी करंट फ्लो करेगा फॉर द टाइम बिंग, मतलब मोमेंट के लिए, तो वो हमारा इक्विपमेंट को डैमेज नहीं करेगा। अगर जैसे हम आपका 110 वोल्ट की सप्लाई होती है, अगर 110 वोल्ट वाला बल्ब है, 220 वोल्ट वाले बल्ब में उसमें लगा देते हैं सप्लाई को, एकदम इमीडिएटली ब्लो कर जाता है वो। ऐसे ही मतलब कोई भी इक्विपमेंट का अगर उसका जो वोल्टेज डबल वोल्टेज पे अगर कर देते हैं या 1.5 टाइम्स में भी कर देते हैं तो इट विल गेट डैमेज्ड। ठीक है, मेन अल्टीमेट ऑफ NGR इज टू लिमिट NGR। अच्छा, because the protection relay needs minimum time to isolate the power system. For short period, the NGR limits sudden flow of fault current from the winding and converts the fault current in terms of heat energy। heat energy NGR जो रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है, वो जो भी करंट आएगा तो करंट IR जो हमारा जो बोलते हैं IR, I और R, अगर I ज्यादा हो जाता है और R रेजिस्टेंस है, उसमें ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो जैसे ही अभी करंट अगर रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा तो हाई करंट जाएगा, तो वो ड्रॉप हो जाएगा उतना, और वो ड्रॉप होने की वजह से क्या वोल्टेज जो अपना टच वोल्टेज है दैट विल बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। और 6th इसका एडवांटेज है, रिड्यूस एक्सपोजर टू आर्क फॉल्ट कॉज्ड बाय फेस टू ग्राउंड फॉल्ट मे कंटिन्यू टू रन विद द ग्राउंड फॉल्ट अलार्मिंग सिस्टम। रिड्यूस अवेलेबल एनर्जी टू आर्क फ्लैश, आग लगने के भी खतरा खत्म हो जाता है इससे। अगर अर्थ फॉल्ट रेजिस्टेंस है तो उसमें आपका आग भी नहीं लग सकता, आर्किंग वगैरह भी नहीं होगा। प्रोवाइड एडिक्वेटेड ट्रिपिंग लेवल्स, NGR यूज करने से हमको ट्रिपिंग लेवल मिल जाता है फॉर सेलेक्टिव ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। टच पोटेंशियल मींस दैट, अब जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, व्हाट इज टच पोटेंशियल।
touch potential means the operation of the installation may continue in presence of any phase to earth fault if the touch voltage can be maintained below 50 volt. ये आपका रेगुलेशन है, उसके हिसाब से इट शुड बी मेंटेन टू 50 वोल्ट टच, मतलब जो इसलिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो कम से कम वोल्टेज होगा तो टच से आदमी को इफेक्ट नहीं होगा. In all other situation where the expected touch voltage are above 50 volt, the interruption of supply is mandatory. तो जैसे अगर ज्यादा होता है तो वो उसको हमको मैनुअली इंटरवीन करके एकदम सप्लाई को टच वोल्टेज 50 वोल्ट रहता है तो हमारा तो वैसे सिस्टम इतना फुल प्रूफ है, फेल सेफ बोल सकते हो. जैसे अगर प्रॉब्लम हो गया तो हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. अभी नोट, ग्राउंड फॉल्ट and neutral are two important conductors apart from the hot or phase wire in the typical mains AC supply. अब दो हम मेन मतलब एक ग्राउंड और न्यूट्रल आर द टू इंपॉर्टेंट कंडक्टर्स होते हैं जो बिसाइड्स हॉट कंडक्टर. हॉट कंडक्टर मतलब फेज वायर RYB के अलावा ग्राउंड एंड न्यूट्रल ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडक्टर्स हैं. बिकॉज अगर एक भी अगर ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हैं हमने न्यूट्रल का बराबर, न्यूट्रल में करंट फ्लो कर जाएगा तो रिवर्स करंट की वजह से उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, शॉक लग सकता है. न्यूट्रल वायर एक्ट्स एज ए रिटर्न पाथ. न्यूट्रल वायर जैसे अगर फेज के और न्यूट्रल के भी सप्लाई देते हैं, घरों में क्या होता है अगर फेज में सप्लाई देते हैं न्यूट्रल के रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है. अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो अगर इम्बैलेंस होता है उसमें रिटर्न पाथ टू द मेन AC वाइल ग्राउंड एक्ट्स एज ग्राउंड लो इम्पीडेंस पाथ टू ग्राउंड फॉल्ट करंट. तो वो ग्राउंड फॉल्ट के लिए लो इम्पीडेंस पाथ का काम करता है. मतलब जो ग्राउंड का जो एज वी नो द करंट फॉलोज द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ. जहां पे भी रेजिस्टेंस होगा वहीं पे. ये मैं अब एक स्लाइड है, इसमें हम देखते हैं कि जैसे अभी 1 मिली एम्पियर अगर करंट है तो परसेप्शन लेवल स्लाइटली टिंकलिंग सेंसेशन हो जाता है. अगर 1 मिली एम्पियर का करंट का शॉक लगता है किसी को तो 5 मिली एम्पियर का रहता है स्लाइट शॉक फेल्ट नॉट पेनफुल बट डिस्टर्बिंग, एवरेज इंडिविजुअल कैन लेट गो. कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. हाउएवर स्ट्रॉन्ग इनवॉलंटरी रिएक्शन टू शॉक इन दिस रेंज में लीड टू इंजरीज. कुछ स्किन बर्न हो सकता है या कुछ वो हो सकता है. 6 मिली एम्पियर टू 16 मिली एम्पियर में पेनफुल शॉक हो सकता है. बिगिन टू लूज मस्कुलर कंट्रोल, कॉमनली रिफर्ड टू एज ए फ्रीजिंग करंट और लेट गो रेंज. जो ये इसका 17 मिली एम्पियर से 99 मिली एम्पियर में एक्सट्रीम पेन होता है. अगर शॉक लगता है इतने मिली एम्पियर का तो एक्सट्रीम रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, सीवियर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, इंडिविजुअल कैन नॉट लेट गो, डेथ में लाइकली भी हो सकता है अगर 99 मिली एम्पियर तक का शॉक लगता है. तो वो क्योंकि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है कुछ 500 ओम से लेके और आपका 1000 ओम इंडिविजुअल का डिपेंड करता है, बट मिनिमम इज 500 से ज्यादा ही होता है. ठीक है, और 500 एंड 1000 ओम के बीच में होता है इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस. तो किसी को फर्क पड़ता है किसी को नहीं पड़ता, ऐसा है. बट ये एवरेज मैन के हिसाब से निकाला हुआ है इन्होंने. 100 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर का अगर शॉक लगता है, वेंट्रिकुलर फिल्ट्रेशन अनइवन और अनकोऑर्डिनेटेड पंपिंग ऑफ हार्ट हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकता है, उसमें पंपिंग, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है, बिगिंस टू अकर, डेथ इज लाइकली इसमें भी. और अब अगर 2000 मिली एम्पियर से कम का ये ग्रेटर देन 2000 मिली एम्पियर से अगर ज्यादा का शॉक लगता है तो कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं और सीवियर बर्न हो सकता है, सडन डेथ भी हो सकती है. सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इट शुड बी प्रॉपर्ली अर्थ. कोई भी इक्विपमेंट है इट शुड बी प्रॉपर्ली अर्थ एंड वी शुड यूज ऑल दिस MCB, RCCBs, ELCBs and protection devices which we are using in our workover rigs for the protection of our human being as well as equipments which we are using in our rigs.
एनजीआर मॉनिटरिंग रिले हम भी, मैं बताया था कि एनजीआर मॉनिटरिंग रिले वी आर यूजिंग विद इन कंजक्शन विद एनजीआर। एनजीआर जो हमने अर्थ रेजिस्टेंस लगा देते हैं, उसके हम उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कि भाई प्रॉपरली अर्थ न्यूट्रल ग्राउंडेड है कि नहीं थ्रू अर्थ रेजिस्टेंस। अगर नहीं होगा तो मॉनिटरिंग रिले विल सेंस इट एंड विल ट्रिप द सर्किट ब्रेकर। तो एनजीआर हम अपना जनरेटर्स वगैरह में हम यूज करते हैं, तो जनरेटर का एनजीआर का उसमें मॉनिटरिंग रिले भी लगाते हैं, और उसका जो भी अर्थिंग न्यूट्रल एनजीआर वगैरह जो यूज करते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर अर्थिंग फॉल्ट रहेगा, एनजीआर अगर प्रॉपरली अर्थ नहीं होगा, तो मॉनिटरिंग रिले विल सेंस द openness of that NGR, so it will get trip the circuit breaker of this generator. Similar thing is also in this our transformer. Our transformer is delta star connected, so a primary supply is delta connected and secondary is star connected. तो स्टार जो न्यूट्रल पॉइंट होता है जो हमेशा it is in the star connected winding. ओके तो बेसिक पर्पस जो मैं अभी बोल रहा था, उसका बेसिक पर्पस इज टू लिमिट द फॉल्ट करंट। एनजीआर का वो जो बताया मैंने, तो बेसिक पर्पस इज टू लिमिट द फॉल्ट करंट एज पर सीई रेगुलेशन 101 ग्राउंड फॉल्ट करंट मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू 75 मिली एम्पियर। ठीक है, एज पर द सीए गाइडलाइंस। टू टाइप्स ऑफ एनजीआर वी आर यूजिंग 320 ohms एंड 170 ohms। ठीक है, 415 वोल्ट जो हमारा 415 वोल्ट जनरेटर सप्लाई है, उसमें हम यूज करते हैं 320 ohms वाला। ठीक है, एनजीआर रजिस्टर, न्यूट्रल ग्राउंड रजिस्टर। तो उसकी कैलकुलेशन की हमने 415 वोल्ट डिवाइडेड बाय √3 इनटू 0.750 एम्पियर, दैट इज 750 मिली एम्पियर। ओके, तो इट कम्स टू बी 320 ohms। एंड सिमिलर थिंग इन ट्रांसफार्मर, वी आर यूजिंग 170 ohms रजिस्टर। उसकी कैलकुलेशन कैसे आती है, 170 ओम कैसे आती है, 220 वोल्ट, बिकॉज फेस टू फेस वी आर यूजिंग 110 एंड 110, तो द फेस डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू इज 220 वोल्ट। ओके, डिवाइडेड बाय √3 इनटू 0.750 एम्पियर, दैट इज 170 ohms। इट कम्स टू बी 170 ohms। ठीक है, एनजीआर का हमारा जो पैनल्स वगैरह है जो विच वी आर यूजिंग, दिस इज एनजीआर रजिस्टर। इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होता है whenever there is an earth fault. Okay, this is the panel, this is NGR monitoring relay, this is voltmeter, circuit breaker, these are indication lamps. Okay, हाँ, अगर हम अर्थिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ये देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर का जो अर्थ है, ये हम किया हुआ ट्रांसफार्मर वाला दिखाया हमने यहाँ पे, कि ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल हमने अर्थ कर किया हुआ है यहाँ पे। ये इसके थ्रू, ये न्यूट्रल है हमारा, ये रेजिस्टेंस के थ्रू, ये रेजिस्टेंस के थ्रू हमने किया, 170 ohms वाला है। ठीक है, ये न्यूट्रल से लिया हुआ है, इसका 170 ohms वाला है, ये रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे अर्थ किया है। और हमारा जो इक्विपमेंट है ये न्यूट्रल वाला है, ये अभी यहाँ से दिया, तो ये जैसे भी ये यहाँ पे अब अभी अगर ये अर्थिंग हमने यहाँ पे किया नहीं है, ये वाला न्यूट्रल है ना यहाँ का, ये अर्थिंग नहीं किया, ये वाला न्यूट्रल हमारा अर्थिंग नहीं किया हमने। ठीक है, तो ये तो एनजीआर है, ये वाला एनजीआर है, ये हमारा बॉडी का जो अर्थिंग नहीं किया हुआ है, ये अगर ये अर्थिंग नहीं करेंगे तो आदमी के थ्रू जाएगा शॉक, जो ह्यूमन बीइंग विल गेट शॉक इफ इट इज नॉट प्रॉपरली अर्थिंग की मेन इक्विपमेंट अर्थिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये तो हमारा अर्थ है ही है एनजीआर। ये अब ये देखिए, अगर हम इसको अर्थ करते हैं, ये न्यूट्रल को, ये आपका ह्यूमन ये बॉडी है जो इसको अर्थ करते हैं, तो ये जो भी करंट होगा, अगर फॉल्ट करंट आता है तो इट विल गेट ग्राउंडेड थ्रू दिस, क्योंकि ये भी ग्राउंडेड है, ये उसके थ्रू ग्राउंडेड है, एनजीआर है ये, और ये इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट अगर प्रॉपरली अर्थ होगा तो हमको शॉक नहीं लगेगा। ठीक है,
तो अर्थिंग मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग का है टू सेव ह्यूमन लाइफ फ्रॉम डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव पाथ फॉर द फॉल्ट करंट टू फ्लो। ये आप कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं ये बता देता हूँ, ये आपका एनजीआर है, ये इक्विपमेंट अर्थिंग है, इक्विपमेंट का अर्थिंग के ऊपर है, इक्विपमेंट अर्थिंग की बात कर रहा हूँ मैं। जो भी इक्विपमेंट हो गया या पंख हाउस हो गया या कोई भी चीज है, उसको हम अर्थिंग करेंगे प्रॉपरली। हाँ, तो अभी तो नॉर्मल कंडीशन में कोई लीकेज नहीं है, एनजीआर ट्रिप होगा नहीं, क्योंकि कोई भी लीकेज नहीं है ना। अगर कोई वहां पे अगर बॉडी को अर्थ नहीं किया हुआ होगा तो कभी थोड़ा भी मिली एम्पियर में भी कहीं लीकेज अगर होता है तो आदमी सेफ रहेगा, अगर अर्थिंग प्रॉपरली की जाती है तो, डबल अर्थिंग। ठीक है, अगर अर्थिंग इसका इक्विपमेंट अर्थिंग को हम करते हैं, इसीलिए हम डबल अर्थिंग के ऊपर, प्रोटेक्शन के ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारा कुछ भी हो जाए इक्विपमेंट को, मगर हमारा ह्यूमन बीइंग को किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट आई थिंक, मेरा मानना यह है कि हमारी वजह से किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगना चाहिए किसी को, इसके लिए हम अर्थिंग के सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर। ठीक है, ये अर्थिंग अगर हम प्रॉपरली कर देंगे तो कोई भी अगर लीकेज थोड़ा सा भी कुछ होगा तो पाथ विल बी दिस लाइन। ओके, नो शॉक, नो करंट विल फ्लो थ्रू द ह्यूमन बीइंग। तो अर्थिंग का मेन पर्पस आई एम डिस्कसिंग to save human life from danger of electrical shock by providing an alternative path for the fault current to flow, to protect buildings, machineries, appliances under fault condition. ठीक है, to ensure that all exposed conductive parts do not reach a dangerous potential. ठीक है, to provide safe path to dissipate lightning and short circuit current. अभी बोल रहे थे एनजीआर मॉनिटरिंग रिले के बारे में मैं बोल रहा था। तो सूटेबल न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस एनजीआर 320 ओम्स इन केस ऑफ इंस्टॉल्ड बिटवीन न्यूट्रल एंड अल्टरनेटर एंड ग्राउंड। जो अल्टरनेटर जो हमारा जनरेटर के लिए बात किया था, तो 320 बाय इंस्टॉलिंग द रेजिस्टेंस फॉल्ट करंट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू maximum 750 milliamps as I discussed in this as per the regulation. In outdoor distribution stations there are many possibilities to damage the neutral grounding connections due to various environmental effects causing open circuit or burning of NGR. This is a very dangerous, क्योंकि हमारा जो रिग है एक हफ्ते में मूव होता रहता है, यहाँ से चला गया उधर, उधर से चला गया, तो कोई भी अगर वो होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज हो सकता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग कनेक्शन ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट, ओपन सर्किट और बर्निंग ऑफ एनजीआर। वो सब हम चेक करते हैं जब वो होता है आपका पीडब्ल्यूसी, उससे पहले हम चेक करके करवाते हैं। दिस इज अ वेरी डेंजरस कंटिन्यूटी टोटली फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग टाइप हम लोग नहीं यूज करते, वी आर यूजिंग रेस्ट्रिक्टेड न्यूट्रल बिकॉज वी आर अर्थिंग इट थ्रू दी this neutral grounding. Okay, this may also result in a failure of earth leakage protection operating through neutral CT as a leakage current may not be able to flow through open circuit of neutral grounding connection. तो ये हमारा फ्लोटिंग न्यूट्रल हम यूज नहीं करते, वी आर यूजिंग रेस्ट्रिक्टेड न्यूट्रल दैट इज थ्रू एनजीआर। ओके, इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं हमारी प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है। वी हैव 4 लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम इन आवर वर्क ओवर रिग्स। हमारे जो हमने बताया ELCB, RCCB वी आर यूजिंग। अगर 30 मिली एम्पियर्स करंट का लीकेज होगा उसमें तो हमारा RCCB से ट्रिप हो जाएगा। हमारा जो लाइटिंग वगैरह, जो आप मास्ट वगैरह की लाइटिंग वगैरह दे रखी है उसमें, तो वो और आपका बंक हाउसेस वगैरह की लाइट, वो एकदम 30 मिली एम्पियर्स में अगर करंट अगर लीकेज हो गया थ्रू किसी भी उसके, तो इट विल गेट ट्रिप, RCCB ट्रिप हो जाएगा और सेफ हो जाएगा। ठीक है, 50 मिली एम्पियर ट्रांसफार्मर ट्रिप, 50 मिली एम्पियर्स का अगर लीकेज होगा तो ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आ रही है वो ट्रांसफार्मर गेट ट्रिप। एंड 100 मिली एम्पियर्स अगर वो जो मैं बताया 100 मिली एम्पियर्स वी आर सेटिंग इट, तो इससे क्या होगा कि ELR ट्रिप हो जाएगा। हमारा ELR जो लगा हुआ है पैनल में, वहां पे जनरेटर हाउस जो है उसमें, जो पैनल हाउस है जो उसमें, तो 200 मिली एम्पियर्स हमारे DG सेटिंग पे सेटिंग कर रखी है। 200 मिली एम्पियर्स में तो हमारा लेयर है, जब
इधर फॉल्ट हुआ, छोटा फॉल्ट हुआ तो ये आरसीसी भी ट्रिप हो जाएगा, एलसी भी ट्रिप हो जाएगा, तो हमारा बाकी सिस्टम चलता रहेगा। अगर उससे बड़ा फॉल्ट हुआ तो ट्रांसफार्मर भी ट्रिप हो जाएगा, सब लाइट चला जाएगा। और उससे बड़ा ट्रिप लीकेज हो गया तो इट विल गेट ट्रिप द ईएलआर सिस्टम, तो हमारा पूरा जनरेटर चलता रहेगा, बाकी सब बंद हो जाएगा, मेन एमसीसी भी बंद हो जाएगा। और 200 मिली एम्पियर से ज्यादा लीकेज हो गया तो हमारा डीजी भी ट्रिप हो जाएगा। This is our 4-layer protection system. Okay. fail-safe relay, we are seeing it. NGR monitoring relay are installed with the NGR. The NGR monitoring relay will continuously monitor the continuity of NGR. जो मैं अभी बताया था, neutral grounding connections and will trip the feeder circuit breaker as and when open circuit occurs in neutral grounding connection. There is any change in value of resistance, the fail-safe relay ensures, that is हमारा जो NGR वगैरह, that is fail-safe relay, समझ लिए fail-safe relay systems है, operation of neutral grounding system. Okay, thank you.